Yeah, your audio is quite weak. The job. Yeah. And we have first jobs. Okay. I would like to wear my headphones then. Is it clear now? Yeah, it is much better. Okay, great. So, I would repeat, there could be cases that few are working and still looking for better opportunities. Well, for them, it's just one word: stay put where you are and evaluate after this session is over. As for the others, there could be a situation that few may be working before and now lost the job. And on the other hand, we have young batch who are looking for the first job. Irrespective, the question comes how to identify the right job. Indeed, Naukri monster. No, not exactly. Yeah, monster means a big task. Can it be? Can please someone stop putting notes on the screen? Yeah, thank you. Okay. Yeah, monster means a big task. Can it be? Well, before we go straight in discussing identifying the right job, the first major task would be, what can it be? Any guesses? Okay. That would be to be honest. And what's that? To be honest to yourself, no one else. To be honest to yourself means to identify or know yourself, to know your personal strengths and weaknesses, or in other words, self-awareness. Self-awareness is the first step in identifying the right job. So let's proceed and see what are the key strengths or the key points on self-awareness. I have shortlisted 3 out of it, which I feel it's very important. Those are skills, interest, standards, or values. We will go deep into it and see what does this actually means. So let's see the first point, skills. Well, your skills are something which describes what you like to do and what you are good. So कुरैशी साहब आपका ऑडियो थोड़ा skill ability this sometimes I'm sorry for that, sometimes on a Friday internet connections are not that great, unfortunately. No, I'm just informing you so that you know that there is a problem. Okay. Yeah. So, it can be further divided into 2 parts. One is the technical skills and the other is soft skills. Technical skills is your ability to accomplish specific tasks like computer programming, teaching. They are all under the segments of technical skills. They relate to a specific occupation. You may have learned technical skills from past work experience, school, or training, like building a cabinet or operate equipment, write a computer code, teach a lesson, and much more, including to sell products to a customer. Now, these are your technical skills.
Or soft skills are what? Something soft. No, the soft skill is a term which originates and has been coined by the US military. The US military invented the term soft skills to contrast with hard skills that involves working with machines. And that's why the word soft skills have come into picture. What is the importance of soft skills? Employers wants employees who fit in and get along well in the workplace. That requires soft skills. These skills are so valuable that they are often the reason why the employers decide. Some soft skills can be taught in school or home, but most you learn in everyday life and can improve at any time, like being a team player, how to communicate well, think critically, how to be self-motivated, how to be flexible, quick learner, and much more. These are categorized under soft skills. So we have skills. Now let us proceed and see the other aspect. That is interest. Well, interest is very simple, but interest is very important. This interest is the built-in trait by nature within you. How do you identify that? You go back and think, what were the things which you used to do in your childhood or as a teen? Ask yourself, ask your parents, your elders, your siblings, or especially your critic friends, जो हर बात पे टोकते रहते थे, यार ये सही नहीं है, वो सही नहीं है. And you would come to know what sort of activities and subjects you are finding interesting. It may change from time to time. Make a list. Does it still attract you? So find out what is your interest, what motivates you. Remember, there's a proverb or a statement: choose a job you love and you will never have to work a day in your life. That is our values. What values are important to you in your ideal career? They include things like honesty, service, self-respect, respect for others, peace and success. Therefore, you must identify what work values you cherish the most before you choose a career or decide whether to accept a job offer. Now, in that also there are two types. One is intrinsic values and the other is extrinsic work values. थोड़ा complex लगता है, but don't worry. Intrinsic, extrinsic और बहुत अभी ये हो रहा है, ठीक है. I don't want to make it more monotonous, Well, हर इंसान में दोनों चीजें होती. We have both intrinsic and extrinsic work values. Intrinsic values have to do with the actual task involved in practicing a certain occupation or doing a particular job. They include helping others, doing challenging work, or being just an exemplary leader. Extrinsic values are concerned by the byproduct of an occupation or a job. What's a byproduct? In the other words, that refer to what you get out of the work, rather than high earning, security. I'll just give you one more example. एक तो होता है आदमी खुशी खुशी अपना घर साफ रखता है. That is something which can be looked as an intrinsic value. लेकिन एक तो ऐसा होता है कि भाई घर पे मेहमान आने वाले हैं तो हमको घर साफ रखना पड़ेगा.
Now you're expecting an output out of it कि भाई आएंगे तारीफ करेंगे ओ कुरैशी साहब आपका घर तो बहुत अच्छा है चीजें अच्छी है तो you are expecting an output out of it. Now that is an extrinsic value. So you need to evaluate these three things before you proceed. When choosing a new job, it is important to find the right one. Let's see that. If you're going to put efforts to find a new job, you need to find something that excites and motivates you and makes an impact or value to the employer. Remember, I would like to stress this, and makes an impact or value to the employer. जब तक आपकी वैल्यू क्रिएट नहीं होती है, there is no reason he would be looking forward to hire you or take you on board. So what to consider when deciding what type of work would suit you? If you disliked your last job, I mean, those who are working and they have left, you have to analyze, was it the role which I was doing? Is it because of the team or is it the organization itself? So you have to ponder over it and analyze, why did you dislike your last job? Of all the jobs you have ever held, which was the most enjoyable and why? बहुत से ऐसे reasons होते हैं, you enjoy the work. So you need to analyze that. Think about a time when you have a great day at work, the sort of day where everything went well. Write down what you were doing, what you enjoyed, and what you achieved on that particular day. What have you enjoyed? As for the students, what have you enjoyed studying most? Academic courses, training events, or learning for fun? What are the jobs done by your friends fascinate you? You know, I see James doing this job. Wow, he is fantastic. Akram does this job. Wow, that's too great. What advertised jobs have attracted you? Sometimes you don't know, but you see a very fantastic advertisement and you get attracted towards it. What topics do you enjoy talking about with friends? I would like to elaborate here further because this would come to another discussion. But yes, commercially speaking, there could be topics you would like to discuss with your friends. If all jobs are same, what would you do? If you could try someone else's job for a day, what would it be? So these are the important questions you need to put forward before finding the right job. Now let's find out what to do. इतना तो सब समझ में, अब करना क्या है? कुरैशी साहब आगे तो बढ़िए. You have been waiting. करना क्या है? So let's see. Let's find out what to do. Whoa, so big screen. So yes, this is what you need to do. So I don't have to now say what skills because I already covered that. First thing first is to analyze your skills. Work out your top personal wish list. Think about key elements as what kind of people you enjoy working with, the results you like to achieve, and the organizational working style. Focus on the job ingredient. Just don't go on the titles. You should actually look. I'm looking for a job, that involves the skills or this specific knowledge or this specific working style. And those who have worked before, dig your experiences. Those who are and were working, ponder over it. Next is look before you leap. Research before you do a job search. Don't rely on the second-hand information
about sectors. Find out yourself. You know, we keep on saying, no, uncle of mine told me this, friend of mine told me this, so and so told me this. No, please do your own self study, do your own research, find out your own self. Don't go on the second hand information. Try to talk to the people who are actually doing the role. The people who love what they do खुद ही और उनके पास पहुंच गया वे सर मुझे अकाउंट्स में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, can you please guide? So do you think that you will get a guidance from there? Because that gentleman himself is not loving his job, so definitely he will not be able to give you correct guidance or motivate you. So contact the people who love what they do and who can tell you what a career feels like from the inside. More important, हाँ ना में बहुत जल्दी फैसले कर लेते हैं, नहीं मुझे तो ये काम नहीं करना है, या हाँ ये तो काम मुझे करना ही करना है. So avoid a yes or a no thinking. When you last heard about an interesting job, how quickly did you find a reason to say no to the idea? Explore the options thoroughly and don't let setbacks put you off. When you get closer to deciding what your ideal job is, learn how to present what you are good at and what you do in short, focused statements. Summarize your skills and think how you can help the organization. Make target list of at least 50 companies which matches your above mix and apply. So these are the things what you need to do. Let's proceed. क्या करना है तो समझ में आ गया, अब कैसे करना है इसको? How should I do? Well, let's see. How should we do it? The first and the most important and the best of it, which I like, and I like to prioritize it, and that's the point number 1. Has the audio stopped? Yes, audience is at mute, but his audio is creating problem. He has network issues. Yes. Yeah. No, I think more some unmuted, so many people. Yeah. Uh, सर आप हैं? हेलो जी सर. अर्शी, जी सर, इब्राहिम साहब दिख तो रहे हैं. इब्राहिम साहब हैं यहाँ पर, he is there. हाँ. So let us wait, let him join. He has got some technical problem. Yes sir, we might just carry on with Ibrahim Saab, and Mr. Asad has joined, but Yeah, he has just disconnected. He has some connection problem because yes sir. he is connecting from Dubai. Yes sir, I think Dubai or Saudi. Yeah, I'm connecting from Jeddah. Yeah. Yeah, Saudi. Yeah. So is my screen sharing is there visible? I think without, yeah, it is better. It is visible? Yeah, it is visible.
Okay, sorry for that. Here I am facing some network issues actually. So yes, how should I do? So here we come, and we were talking about networking. Okay, so one can join professional associations, attend events for graduates of your school, connect with professionals who work in your field, and take every chance you get to meet up. In person or online with others in your field allows you to broaden your network to friends. The bigger your network, the more likely you'll find out about new opportunities. The second is referrals. Some employers offer incentives to their employees for referring a successful candidate to the company. It's a win-win situation for everyone. You get a new job and your contact gets a finder fee for attracting a top-notch employee. Again, network plays an important role. The third is job website. If you're just starting out, an internship or even a volunteer job can get you at the door. Many state government job banks that can be accessed by all. You can also use job search engines or any vast number of career related websites that post jobs opening. The other is companies' websites. If you already have your dream employer in your mind, go directly to the career section of the company's website. If you track opening on the site, there are chances that you'll find the opportunity that you have been waiting for. Create a list of employers that you'd like to work for and visit their websites often. Not just how we एक बार चले गए, दो बार चले गए, I don't see any openings. No, keep on looking at it because when openings will come, you won't come to know. The other is cold calling. If you don't see any job listed, posted for a company you're particularly interested in, make a cold call. Phone or email people in the organization, their contact details on the company website. Ask about the upcoming vacancies and attach a copy of your resume. Well, of course, keep in mind that this kind of contact may not always be well received. Okay? The others are headhunters and recruiters. Many organizations hire through recruitment agencies to streamline their hiring process. Headhunters actively recruit individuals to fill specific vacancies. Again, you have to keep in mind that many high schools and colleges have job placement services in their campuses. These help new graduates to develop their resumes and assist both current students and alumni with job searches. And lastly is the internship. I've seen many people, they avoid internship and they are looking directly for jobs. Well, temporary employment and short employment contracts often lead to permanent positions. Remember that. It's a great way. Again, I would say, it's a great way to get a foot in the door or at the very least provide you with useful business contact to call upon in the future. Do not think that job looking is one-time process. It is an ongoing process. Build relationship. Internships are a great choice for students who are just graduating from the college. Sir, may I request you to use Hindi language also because some of our viewers must be would like to listen to you in Hindi language or Urdu language. So if in between use the Hindustani language also for a better understanding of what you are saying. Okay. Actually, I was on the last slide now.
but it's still because this slide is very important, so I thought if you could. Okay, I will repeat that. I'll go back. How should I do this one? Yeah, this one. ओके ओके, हमने इसके पहले देखे कि क्या करना है, लेकिन अभी ये सवाल उठता है कि कैसे करना है। तो सबसे पहला सवाल आता है जो मेरे सामने है और सबसे उम्दा पॉइंट है। सॉरी, मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है। उम्दा पॉइंट है कि नेटवर्किंग यानी लोगों के साथ ताल्लुकात रखना, सोशलाइज करना। याद रखें, अक्सर अच्छी जो जॉब्स होती है वो जो होती है वो छुपी हुई होती है। वो अंदर ही अंदर लोग जो है अपॉइंट कर लेते हैं। किस तरीके से? वर्ड ऑफ माउथ से, एक दूसरे से पता चलता है। ओ, शारिक ने रवि से कहा, रवि ने जोसेफ से कहा, उससे मुझे पता चला कि सर वहाँ पर एक ओपनिंग है। अब मैंने जो है वहाँ पर अप्लाई किया। दोस्तों से पता चलता है। कुछ आपके अच्छे प्रीवियस बॉस होते हैं, वो बताते हैं कि देखिए असद, मुझे पता चला आप जॉब ढूंढ रहे हैं, मेरा कलीग वहाँ पे जो है वो डायरेक्टर है, आप जो है उनसे जाके राब्ता कीजिए और आपको जो है वहाँ पर आपका सीवी भेजिए। इसके अंदर और एक चीज़ होती है, बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल एसोसिएशंस है, इदारे हैं, ऑनलाइन इदारा है। जैसे सबसे कॉमन जो एक्सटेंसिवली यानी ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो लिंक्डइन है। आप जो है लिंक्डइन पे अपने आप को रजिस्टर करवाइए, लिंक्डइन का सही से भरपूर इस्तेमाल कीजिए। हमारे एक बहुत अच्छे स्पीकर है इस बैच में, जो ये प्रोग्राम हमारा चल रहा है जॉब रेडीनेस प्रोग्राम में, एक बहुत अच्छे स्पीकर है जो इस लिंक्डइन को अच्छे से कवर करेंगे, उम्मीद है उनसे। तो लिंक्डइन को जो है वो बहुत एक्सटेंसिवली आप यूज कीजिए। इससे आपके ताल्लुकात स्पेसिफिक लोगों से बनते हैं। दूसरी जो चीज़ है वो है रेफरल। रेफरल्स क्या होते हैं? आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपकी कंपनी जो है मोस्टली ये बैक ऑफिस कंपनीज होती है, कॉल सेंटर्स होते हैं। यहाँ पे अक्सर रेफरल्स के इंसेंटिव मिलते हैं। जो अच्छे कैंडिडेट को रिक्रूट करके ले आता है उसको जो है एक सर्टन कमीशन मिलता है, इंसेंटिव मिलती है, ताकि वो हमेशा अच्छे लोगों को इनवाइट कर सके और अपनी कंपनी में रख सके। ये जॉब रिटेनिंग प्रोग्राम का एक हिस्सा होता है, किस तरीके से हम अच्छे स्टाफ की पूल हमेशा बरकरार रखें। इससे जो है आपकी विन विन सिचुएशन होती है, लेने वाला भी जो है वो खुश होता है, उसको इंसेंटिव मिलता है, और आने वाले को जो है वो रोजगार मिलती है। उसके बाद होते हैं जॉब वेबसाइट्स होते हैं। जॉब वेबसाइट जो है इसमें जो है काफ़ी आप जब स्टार्ट करते हैं तो आप जो है इंटर्नशिप या वॉलंटियर वाले जॉब जो होते हैं उसमें भी आप ध्यान दिया करें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, और मैं काफ़ी ऐसे केसेस देखे खुद ने पर्सनली, कि यंग बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उन्होंने इतनी बेहतरीन तरीके से इंटर्नशिप की, इतनी बेहतरीन तरीके से इंटर्नशिप की कि कंपनी ने उनको जो है परमानेंट जॉब अपनी ही कंपनी में ऑफर करके उनको एब्जॉर्ब कर लिया। जॉब वेबसाइट्स पे भी सर्च करें, इंटर्नशिप को भी सर्च करें, वॉलंटियर जॉब्स को भी देखें। लोग सोचते हैं अभी वॉलंटियर करूंगा मैं तो मुझे तो कोई क्या पैसे मिलेंगे मुझे इसके। डोंट थिंक, इस तरीके से आप नहीं सोचे। अगर कोई वॉलंटियर जॉब है तो वो भी आप लेने की कोशिश करें, क्योंकि वहाँ से भी आपके रास्ते खुलने के बहुत चांसेस होते हैं। फिर कुछ ऐसी जगहें होती है, बैंक्स के पोर्टल होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पोर्टल्स होते हैं जो कोई भी एक्सेस कर सकता है, और मुख्तलिफ सर्च इंजिन्स होते हैं, वहाँ पर आप जाके चेक कीजिए। कंपनी की कुछ वेबसाइट्स होती है। इसके प्रीवियस के स्लाइड्स में मैंने कहा था कि कम से कम 50 कंपनी को आप जो है शॉर्टलिस्ट कीजिए। अब आप 50 कंपनी को शॉर्टलिस्ट करके क्या करेंगे? तो आपको उनके वेबसाइट पे जाना है, आपको देखना है
कि उसमें कोई ओपनिंग्स है या नहीं है, और ये एक बार का काम नहीं होता है, आपको बार बार देखना चाहिए। आपने बोले अरे मैंने तो 50 देख लिया, अब तो ज़रूरत नहीं है, अब तो यहाँ तो कुछ है नहीं। नो, ये कभी भी पॉपअप हो सकते हैं, यू नेवर नो। तो आप जो है आप जाके रेगुलरली चेक करते रहते हैं। उसके बाद जो है कोल्ड कॉलिंग। कोल्ड कॉलिंग का मतलब होता है कि आपका टेलीफोन सामने वाला एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, आपके घर पे आप मेहमान एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, अचानक से बेल बजती है और फिर आपको पता चलता है कि आपके बाहर मेहमान खड़े हैं आपके, तो दैट इज कोल्ड कॉलिंग। ठीक है, आप कॉल करते हैं कंपनी को और मालूमात निकालने की कोशिश करते हैं कि भाई यहाँ पे जॉब है नहीं है, किस तरीके का जॉब है, किससे मुझे बात करनी चाहिए, किससे कांटेक्ट करना चाहिए, कौन राइट पर्सन है। लेकिन हाँ, ये दिमाग में आप जहन में ज़रूर रखें कि ये अक्सर जो तरीका जो होता है इसके अंदर आपको सही रिस्पांस जो है सामने से नहीं मिलते हैं। ये मैंने कहता हूँ कि नहीं मिलेंगे, लेकिन यूजुअली नहीं मिलते हैं। उसके बाद आते हैं हेड हंटर्स और रिक्रूटर्स। ये वो कंपनी होती है, ये वो इदारे होते हैं जहाँ पर कंपनीज जो है आउटसोर्स कर देती है। कंपनी का जो एक एचआर होता है उसके पास मुख्तलिफ चीज़ें होती है काम करने के लिए, तो वो अपना वक्त नहीं दे पाता है कि मैं एक उसके पीछे 1,500 2,000 रिज्यूमेस आते हैं, कंपनी को अपना काम एक चंद मुनासिब कॉस्ट के ऊपर उनको आउटसोर्स कर देता है। तो ये लोग जो है इनके पास भी ठीक ठाक आज की तारीख में ओपनिंग्स आती रहती है। और दूसरे जो है जो स्कूल और कॉलेजेस में है, तो वो भी ये ध्यान रखे कि कैंपस के इस प्रोविजन को पूरा पूरा आप इस्तेमाल करें। मैंने अक्सर ये भी नोट किया है कि जो जॉब प्लेसमेंट सेल्स होते हैं कैंपस के, बच्चे जो है उसका पूरा इस्तेमाल नहीं करते। आप याद रखें जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ है उससे बहुत सी कंपनीज डायरेक्टली कनेक्टेड होती है, और कुछ ऐसे जॉब प्लेसमेंट सेल्स होते हैं जो उन कंपनीज के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं। तो आप जो है अपने जॉब प्लेसमेंट सेल्स यूनिवर्सिटीज के उनके साथ भी कंटिन्यूस राब्ता रखें। अगेन नेटवर्किंग। फिर इंटर्नशिप्स आती है जिसमें टेम्पररी आपको एम्प्लॉयमेंट होती है, 3 महीने की, 4 महीने की, 2 महीने की, कोई बात नहीं, ले लीजिए, स्टार्ट कीजिए। आपको पता चलेगा उस कंपनी का माहौल कैसा है, लोग कैसे हैं, काम किस तरीके से किया जाता है, तो हिस्ट्री को देख। सॉरी, आपका ऑडियो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, और सिर्फ थोड़ा 5 मिनट बाद अगर क्लोज करेंगे तो इब्राहिम साहब की ही वांट्स टू स्टार्ट दिस। यस 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 यस, वो आपने रिपीट करने कहा था हिंदी में, या आई वाज रिपीटिंग। तो इंटर्नशिप्स जो होते हैं दैट्स अ ग्रेट चॉइस। और स्टूडेंट्स हु आर जस्ट ग्रेजुएटिंग फ्रॉम कॉलेज, उनको इतना नहीं सोचना है कि टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट है, शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट है। यू हैव टू जस्ट गो फॉर इट। अब ये लास्ट स्लाइड है मेरा, कोविड सिनेरियो। अब सर आप कहेंगे कि आपने तो सर सब चीज कह दी, अभी यहाँ पे तो अभी कोरोना वायरस चल रहा है, सब जगह पूरी दुनिया में चल रहा है, तब क्या करें हम? थिंक अबाउट व्हाट यू कैन डू टुडे। आप ये सोचो कि अभी आप आज क्या कर सकते हो, और आने वाले 30, 60 और 90 डेज में आप क्या कर सकते हो। याद रखिए, दिस इज नॉट अबाउट फॉर एवर, इट इज अबाउट राइट नाउ। सिचुएशन जो है ये अभी आई हुई है, ये बोल के बता के वार्निंग्स दे के हमको आई नहीं है। तो इसीलिए आपको कोई पेनलाइज नहीं करेगा अगर आप कोई छोटा जॉब ले लेते हो या कम वक्फे का जॉब लेते हो, 30 या 60 या 90 दिन का। एटलीस्ट आप जो है जॉब पर लग जाते हो। सो नो वन विल पेनलाइज यू फॉर टेकिंग अ जॉब आउटसाइड योर फील्ड और अ करियर फॉर अ लिटिल वाइल। आप सोच रहे हो एक, आपको मिल रही है दूसरी जगह,
ले लीजिए प्लीज, क्योंकि जो आगे चल के रिक्रूटर्स होंगे दे विल अंडरस्टैंड एंड इट मे इवन मेक यू मोर मार्केटेबल व्हेन द क्राइसिस इज ओवर। खाली बैठने से अच्छा है कहीं ना कहीं आप ज्वाइन करके अपने आप की प्रोडक्टिविटी और आपकी मार्केटेबिलिटी को बढ़ाए। सिर्फ वेट नहीं कीजिए मुझे इसी चीज में इसी फील्ड में जॉब मिलेगा तो ही मैं लूंगा, नहीं। You would likely had a successful career because you have certain attributes already आपके पास है, आपके पास intelligence है, आपके पास connections है, आपके पास resourcefulness है, and now you will need to tap into them in an unprecedented way। और आपको जो है उसको मुख्तलिफ और बहुत हटे हुए तरीकों से आपको उसको यूज करना पड़ेगा। Use this time to explore jobs you may have not considered in the past। ले लो, मत सोचो, and perhaps you will find opportunities you wouldn't have necessarily pursued otherwise। हो सकता है आप पहले नहीं परस्यू करे होंगे। ऐसे हालात नहीं है जो आती है, आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो क्रिएटिविटी के जरिए। आपके पास कोई हॉबी है या कोई टैलेंट है तो उसको आप करने की कोशिश कीजिए। एक शॉर्ट टर्म बिजनेस कंसल्टिंग कर सकते हैं या ऑनलाइन। सॉरी, ऑडियो डिस्टर्ब हो रहा है। ओके जी अब can ठीक you है। provide individual lessons or consulting online or create an online course? Be patient, do lot of prayers, boost your skills and do extensive network। सबर से काम लो, बहुत दुआएं करो, अपने स्किल्स को डेवलप करो और बहुत बहुत नेटवर्किंग करो। I wish all the attendees of this session best of luck. May Allah guide us all, protect us and make ways easy for us for the sustenance of now and future. Ameen. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Thank you very much, Asad Qureshi Saab, for giving us this wonderful presentation to our job seekers. And we are also thankful to you for addressing them far away from Jeddah and having care for our youth. We value your suggestions and hope our students must have learned a lot from you. Now I invite our new speaker, Mr. Ibrahim Saab, to give his presentation. Good afternoon, Khalid Sahab and Angela, for giving me this opportunity. I'm very happy that Empire is now doing something which is very, very constructive, which is basically to help the new generation of people in our society to become to play a role in building the nation, building the country, building the society. So I think it's a very good thing that we are doing, and I hope to see more such activities in the future. After an excellent session by Asad Qureshi Sahab, so I had actually asked Angela right at the beginning that should it be in Hindustani or should it be in English, and she categorically said that it should be in English. So do you want me to continue in English or should I switch over to Hindustani? No, I think Hindustani is a better idea. Okay. Wherever you feel it is more comfortable to speak in English, you can also use both the medium. Anyway, जी बेहतर anyway हिंदुस्तानी अब बगैर अंग्रेजी के हो नहीं पाती है, तो हिंदुस्तानी जब बोलेंगे हम लोग तो उसमें तो आधी से ज्यादा शायद अंग्रेजी हो ही जाएगी. Definitely, that's why we call it Hindustani. जी It is a mix of Hindi or English. तो असद साहब के सेशन के बाद उतना अच्छा सेशन मेरे लिए आसान नहीं होगा, लेकिन मैं
जितना भर भी जानता हूँ उसके दम पे और उसके बेसिस पे मैं कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगा अपने नौजवान साथियों के साथ जो तलाश माश में और नौकरी की तलाश में अब निकलेंगे या निकले हुए हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमारे यहाँ काफ़ी लोग जो है ना वो उनका ऑडियो वीडियो सब ऑन है, उनका पंखा और उनका बिस्तर और ये और वो सब नज़र आ रहा है। तो सब लोग अगर मुझे छोड़ के सब लोग अगर उस पर चले जाएं, अपना म्यूट कर लें, तो शायद थोड़ी सी ऑडियो क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाएगी। तो ये मेरी एक रिक्वेस्ट है और मॉडरेटर चाहे तो इसको कर भी सकते हैं। ठीक है, तो इस पे हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, मेरे जो वालिद साहब थे वो ये कहा करते थे, जब हम लोग छोटे छोटे थे तो हम लोगों से वो ये कहते थे कि गेट व्हाट यू लाइक, अदरवाइज यू विल हैव टू लाइक व्हाट यू गेट। यानी कि जो आपको पसंद है अपने कैरियर के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, जो आपको पसंद है ज़िंदगी में, उसको पाने की कोशिश कीजिए, वरना आपको जो भी मिलेगा आपको वो अच्छा लगना, उसी के साथ आपको ज़िंदगी चलानी पड़ेगी। और ज़िंदगी की हकीकत ये है कि हम लोग वो अक्सर पहला कदम ही गलत उठा लेते हैं और इस चीज़ पे बहुत सोच व फिक्र, गौर व फिक्र नहीं करते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं, हमारी स्ट्रेंथ किस में है और हम उसको परसू करें, उसके पीछे जाएं। तो मेरे ख्याल में, और जिस पे शायद असद साहब ने काफ़ी कहा, ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अपना पैशन, अपना इंटरेस्ट सबसे पहले उस पे तवज्जो दें। आज से 25-30 साल पहले और उससे भी थोड़ा पहले मेरे ज़माने में इसकी अपॉर्चुनिटी बहुत नहीं थी। 8-10-15 किस्म के कैरियर हुआ करते थे। बैंकिंग था, सिविल सर्विसेज था, इंजीनियरिंग था, डॉक्टरी थी, साइंटिस्ट था और वकील थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। इस किस्म से 10-12 और थे शायद, मोटे मोटे, और वही आप चुन सकते थे। उसके अलावा आप किसी चीज़ में नहीं गए तो फिर आपको नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। अब सिचुएशन जो है वो बहुत बदल गई है। अब तो मैं आपको किस्सा बताऊं, मेरी एक कलीग थी यहाँ साइबर मीडिया में, हम लोगों की आईटी मैगजीन्स पब्लिश होती हैं, तो वो अपना बताती थी किस्सा कि कैसे उनका बेटा जो है 9वीं में पहुंच गया और 10वीं में पहुंच गया और 12वीं कर ली और अब इंजीनियरिंग की तैयारी करेगा। और एक दिन वो ऑफिस में हम लोग बैठे हुए थे लंच पे और एकदम ऐसा लगा कि वो फूट फूट के रोने लगी। सीनियर थी, तो पूछा गया तो बोली कि वो तो इंजीनियर, हम लोग की ख्वाहिश थी, तमन्ना थी कि इंजीनियरिंग करेगा, वो इंजीनियर बनेगा। वो तो ये कह रहा है कि मैं तो गिटार का शौक है मुझे, मैं तो गिटार बजाऊंगा और अम्मा आप फिक्र मत कीजिए, गिटार से मैं पैसे भी कमा लूंगा और गिटार से मैं अच्छी खासी इनकम हो जाएगी। बहरहाल, लंबी टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो म्यूजिक इंडस्ट्री में गया। नॉट इन दैट सेंस कि म्यूजिक इंडस्ट्री, लेकिन उसने म्यूजिक के जिंगल्स बनाना और बैकग्राउंड म्यूजिक बनाना, और म्यूजिक में भी तरह तरह की चीजें होती हैं, वो किया और अब माशाल्लाह ही इज डूइंग प्रीटी वेल, बहुत अच्छा कर रहा है। तो ये जो पूरा जो सोच तो थी नौकरी के बारे में और करियर के बारे में, ये बहुत बदल गई है। अपॉर्चुनिटीज अब 1000 किस्म की अपॉर्चुनिटीज हो गई, बहुत अपॉर्चुनिटीज है। तो इसलिए ये डर दिल से निकाल दीजिए कि भाई मेरा पैशन जो है, मेरा इंटरेस्ट जो है, वो तो है म्यूजिक में या गार्डनिंग में या किसी और चीज़ में, लेकिन वहाँ नौकरियाँ बहुत नहीं है, वहाँ मैं कमाऊँगा कैसे, वहाँ खाऊँगा कैसे, वहाँ वहाँ मैंने नौकरी कर लिया, कैरियर बनाया तो मेरी शादी नहीं होगी वगैरह वगैरह। तो ये अब बहुत सारी, आप सर्च कीजिए अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज को लेके, तो इतनी चीजें हो गई हैं हिंदुस्तान में, इतनी चीजें हो गई हैं, इतनी चीजें हो गई हैं जहाँ के आपको कैरियर अपना बना सकते हैं। तो इसलिए अब ये बहुत सोच समझ के आगे चलिए कि आपकी क्या एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, किस चीज में आपका दिल लगता है, क्या आपका आपका पैशन किस में है, आपकी दिलचस्पी किस में है, आपका दिल किस में लगता है, आपको मजा किस में आता है। और जैसा कि असद साहब ने कहा था कि अगर वो रास्ता आपने पकड़ लिया तो आप जिंदगी भर, आपको लगेगा ही नहीं कि आपने नौकरी की है या आपने काम किया है। वो हंसते खेलते होगा और उसमें आप बहुत अच्छा करेंगे, उसमें आप बहुत अच्छा करेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा कि मेरे वालिद साहब कहते थे, गेट व्हाट यू लाइक, अदरवाइज यू विल हैव टू लाइक व्हाट यू गेट। और उसमें ये है कि इफ यू गेट व्हाट
then the chances of doing well in that field are very तो सबसे पहली बात मेरी ये है कि हम सब लोग थोड़ा वक्त जॉब मार्केट में कूदने से पहले, जॉब मार्केट में छलांग लगाने से पहले थोड़ा वक्त हम लोग इसमें निकालें कि भाई हमारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, हम क्या करना चाहते हैं, हमें क्या शौक है, किसमें अच्छा कर सकते हैं, इस तरीके से। सबसे पहली बात तो मेरे ख्याल से ये है। दूसरी चीज जो अब मैं कहना चाह रहा हूँ और वो ये है कि ये कोविड का जो पूरा वो है, मैं कोविड थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके पहले ले आया हूँ। देखिए कोविड 6 महीने में खत्म हो जाएगा, 2 साल में नहीं खत्म होगा, कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन कोविड से बहुत सारी चीजें लोगों को समझ में आ गई। जैसे कि मैं बताऊं आपको कि बहुत सारी आईटी कंपनीज जो हैं वो अब उनके यहाँ एम्प्लॉयज जो हैं वो घरों से काम कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि जो लोग घरों से काम कर रहे हैं और उसमें उनकी बहुत सेविंग है, बहुत चैलेंजेस भी हैं, बहुत दुश्वारियां भी हैं, बहुत सारी नई चीजें करनी पड़ रही हैं, लेकिन उसमें उनकी बहुत सेविंग्स भी है, बहुत प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, एफिशिएंसी बढ़ रही है, वगैरह वगैरह। क्योंकि आपको जो 2 घंटे ऑफिस जाना और 2 घंटे ऑफिस आना और ऑफिस का जो माहौल होता है, तो उसकी वजह से अब आप घर से काम कर रहे हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी बहुत बढ़ रही है। मुझे कोई आदमी ऐसा नहीं मिला है जो ये कह रहा हो कि साहब कोविड का टाइम है, घर में बैठा हुआ हूँ, मेरा तो वक्त ही नहीं गुजरता है। बल्कि लोग ये कह रहे हैं कि साहब कोविड में और में जो घर से बैठे बैठे काम कर रहे हैं तो वक्त कैसे गुजरता है पता ही नहीं चलता है। और मुझे तो ये लगता है कि साहब वो जो हम ऑफिस जाते थे, जो 6 घंटे काम करते थे या 7 घंटे काम करते थे, अब शायद 15 घंटे रोज हम लोग काम कर रहे हैं। तो कोविड को मेरे ख्याल में, कोविड खत्म हो जाए या नहीं खत्म हो जाए, मेरे ख्याल में बहुत से जो रूल्स ऑफ द गेम है बिजनेस के या कैरियर के या इंडस्ट्री के, वो गालिबन बदल जाएंगे, गालिबन बदल जाएंगे। तो जैसे कि एक रूल ऑफ द गेम ये है मेरे ख्याल में कि जो ऐसी कंपनीज जो डिजिटली ओरिएंटेड है, जो कंप्यूटर प्लेटफॉर्म्स पे या आईटी प्लेटफॉर्म्स पे या टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स पे के बेसिस पे चलती हैं वो कंपनीज, उनका अच्छा करना, उनका चलना ज़्यादा के चांसेस ज़्यादा होंगे बनिस्बत ऐसी इंडस्ट्रीज के जहाँ फैक्ट्रीज हैं, जहाँ लोगों को इकट्ठा होने की ज़रूरत है। वो सब ऐसी इंडस्ट्रीज जो हैं वो रिस्की इंडस्ट्रीज में हो जाएंगी। तो ये एक चीज़ जो है मेरे ख्याल में सब ऐसे लोगों को जो अब अपनी जॉब की और करियर की नई दुनिया शुरू कर रहे हैं, मेरे ख्याल में उसको, उन लोगों को इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा कि ऐसी नौकरी या ऐसा करियर या ऐसा एंटरप्रेन्योर के बारे में सोचा जाए जहाँ के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंडेंस बहुत हाई है, उसके बेसिस पे काम चलता है। और उस किस्म के काम जिसमें कि फिजिकली प्रेजेंट होने की ज़रूरत है, ये सब काम जो है ये थोड़े रिस्की कामों में से आ जाएंगे। इसमें भी चेंजेस आएंगे बहुत। मैं किसी से बात कर रहा था एरिक्सन में, तो एरिक्सन जो एक कंपनी है, आप लोगों को मालूम होगा, एरिक्सन बेसिकली टेलीकॉम इक्विपमेंट बनाता है और उसके अलावा और भी चीज़ें पे काम करता है। तो उनका कहना ये था कि अब पिछले 2-3 महीनों में वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में उनके पास बहुत रिक्वेस्ट आ रही हैं फॉर 100% ह्यूमन लेस फैक्ट्री सॉल्यूशंस। तो ऐसी फैक्ट्रीज जहाँ के लोग नहीं जाएंगे, कोई आदमी ही नहीं होगा, यानी कि वहाँ रोबोट्स काम करेंगे और सिस्टम्स होंगे और प्रोसेसेस होंगे या और दूसरी चीज़ों से काम होगा, लेकिन आदमियों का इंटरवेंशन जो है वो बहुत कम होगा। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि आने वाले दिनों में अब जो लोग हैं वो इस चीज़ को बहुत ध्यान में रखें कि आने वाले दिनों में ऐसे कैरियर की तरफ सोचें जो कि इंटरनेट बेस्ड कंपनीज हैं या डिजिटल बेस्ड कंपनीज हैं या टेलीकॉम बेस्ड कंपनीज हैं वगैरह वगैरह। खैर ये तो बहुत ही ऐसी बात मैंने बताई, बहुत ही जेनरिक बात है, लेकिन इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा मेरे ख्याल में। तो
मैं जो सबसे पहली चीज पे बात करना चाहता हूँ वो ये है कि मैं what is the line that I should choose for myself? What is that career or what is the industry or what is the sector that I want to choose for myself? मुझे किस एरिया में जाना चाहिए? पहली बात तो मेरे ख्याल में अब हम लोग ये कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि भाई अब डरने की बात नहीं है। अगर मुझे वो जो ट्रेडिशनल कैरियर्स थे वो पसंद नहीं है, कुछ दूसरी किस्म की चीज़ पसंद है, तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि उस दूसरी चीज़ में भी मैं कैरियर बना सकता हूँ, मैं कमा सकता हूँ, शादी हो सकती है मेरी, घर चल सकता है मेरा बाइज्जत। तो पैशन को नंबर 1 रखें अपना एरिया चुनने में नौकरी के लिए। आपका जो शौक है, आपका जो पैशन है, जो इंटरेस्ट है, उसको नंबर 1 रखें। उसके बाद कुछ चीज़ें जो देखने की हैं मेरे ख्याल से वो ये हैं जिनके बेसिस पे आपको और इसीलिए मेरे ख्याल में असद साहब ने पहले ये कहा था कि भाई सीधे छलांग मत लगाइए, उसमें स्टडी करिए, स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। तो 4-5 चीज़ें जो हैं जो मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपको अपना एरिया चुनने के लिए। तो ऐसे एरियाज चुनिए जिसमें कि जो आपको लगता है कि हाई ग्रोथ एरियाज है। तो आजकल के एरियाज, हाई ग्रोथ से मेरा मतलब है कि वो इंडस्ट्री या उस इंडस्ट्री में जो कंपनीज हैं उनकी ग्रोथ बहुत होगी, उनकी रेवेन्यू ग्रोथ बहुत होगी, उनकी मार्केट ग्रोथ बहुत होगी, उनके कस्टमर और सब्सक्राइबर ग्रोथ बहुत होगी। तो ऐसे एक चुनिए जिसमें कि ग्रोथ आने वाले 5, 10, 15 सालों में होने के चांसेस बहुत हैं। तो जैसे मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे ग्रोथ एरियाज जो हैं आजकल, जैसे कि इंटरनेट बेस्ड जो स्टार्टअप्स हैं वो बहुत, उनमें से बहुत सारे जो हैं वो बड़े हाई ग्रोथ एरियाज में से। उसके बाद रिटेल बहुत हाई ग्रोथ एरिया है, रिटेल का कॉन्सेप्ट चेंज कर रहा है, रिटेल बहुत हाई ग्रोथ एरिया है। हेल्थ केयर हाई ग्रोथ एरिया है, एजुकेशन हाई ग्रोथ एरिया है, हाईटेक खुद मतलब आईटी और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज बहुत हाई ग्रोथ एरिया है। और भी आप जब इसको थोड़ा सा सर्च करेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि जिनको इकोनॉमिस्ट या जिनको इंडस्ट्री वाले लोग हाई ग्रोथ सेक्टर्स कहते हैं। तो मेरे ख्याल में एक चीज जरूर है देखने की कि आप ऐसे सेक्टर्स में जाइए जो कि हाई ग्रोथ सेक्टर्स हैं, क्योंकि उसमें ग्रोथ ज़्यादा है, उसमें ग्रोथ ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ सैलरी इंक्रीमेंट्स, ग्रोथ ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ प्रमोशंस, ग्रोथ ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग पॉसिबल। तो एक चीज़ ये है देखने की। दूसरी चीज़ मेरे ख्याल में ये देखने की है आपकी कि भाई जिस चीज़ में आप जा रहे हैं उसमें आप बहुत स्टैग्नेट तो नहीं करेंगे, क्या उसमें अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। तो अब मैं बताऊं आपको कि जैसे चंद साल पहले टेलीकॉम एक एरिया माना जाता था जो कि बहुत हाई ग्रोथ एरिया था और उसमें अपॉर्चुनिटीज़ बहुत थी। टेलीकॉम में जाएंगे तो आपको मार्केटिंग में भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपको नेटवर्क मैनेजमेंट में भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपको टेक्नोलॉजी में भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इस तरीके से। और दूसरा अपॉर्चुनिटीज़ का तरीका है देखने का कि भाई लोकल अपॉर्चुनिटीज़ और ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़। तो वहीं मैं अगर उसकी एग्जांपल दूं आपको टेलीकॉम की, तो टेलीकॉम में भी चंद साल पहले ये था कि साहब टेलीकॉम जो है वो सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि टेलीकॉम की ग्रोथ हो रही है, अफ्रीका में भी टेलीकॉम की ग्रोथ हो रही है, ईस्टर्न यूरोप भी टेलीकॉम की ग्रोथ हो रही है, मिडिल ईस्ट में भी टेलीकॉम की ग्रोथ हो रही है, साउथ अमेरिकन मार्केट्स में भी। तो आप रिस्ट्रिक्टेड नहीं हैं सिर्फ एक ही ज्योग्राफी को या सिर्फ इंडिया के ही बेसिस पे, भाई इंडिया में ही अगर ग्रोथ होगी तो मेरी गाड़ी चलेगी। तो आप ऐसे सेक्टर्स चुनिए जो कि जिनकी ग्रोथ ग्लोबल है ताकि आपको ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सके। एक और चीज जो आपको ख्याल रखना चाहिए वो है कि लर्निंग अपॉर्चुनिटीज कहाँ है। तो देखिए हम लोग तो अब बुढ़े हो गए हैं, हम लोगों को तो अब लर्निंग अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे भी तो पता नहीं हम लोग अब सीख पाएंगे कि नहीं पाएंगे। लेकिन आप लोग जो कि अभी बहुत यंग हैं और अपना प्रोफेशन और कैरियर शुरू करने वाले हैं, आप लोगों के लिए
ये बहुत इम्पोर्टेंट होना चाहिए कि भाई मैं सीखूंगा, मुझे कौन सी ऐसी नौकरी है जहां मुझे सीखने का बहुत मौका मिलेगा। तो ऐसी ऐसी एक स्टार्टअप्स, एक फॉर इंस्टेंस एक ऐसा है, फर्स्ट कीजिए आप जाना चाहते हैं फाइनेंस में, तो फाइनेंस में तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है फाइनेंस की, और फाइनेंस में बड़े बड़े बैंक्स भी हैं, और फाइनेंस में छोटी छोटी माइक्रो फाइनेंस कंपनीज भी हैं, और फाइनेंस में छोटी छोटी मोबाइल फाइनेंस भी है, और वगैरह वगैरह वगैरह। और इसके अलावा भी बीसीओ चीज़ें हैं फाइनेंस में, और स्टार्टअप्स भी बहुत सारे हैं फाइनेंस में। तो स्टार्टअप भाई या बहन जिसको सीखने की बहुत तलब है, तो उन लोगों के लिए स्टार्टअप एक बहुत अच्छी जगह है। स्टार्टअप में नौकरी भी अक्सर आसानी से मिलती है, और स्टार्टअप में सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। तो आप अपना जो प्लान है उसमें स्टार्टअप को भी बहुत इम्पोर्टेंस दीजिए, क्योंकि स्टार्टअप एक ऐसी जगह है वहाँ आपको लर्निंग अपॉर्चुनिटीज बहुत होंगी। स्टार्टअप में ये होता है 5 मिनट वो हर काम करते हैं, तो आप स्टार्टअप में जाएंगे तो आप 20 किस्म की चीज़ें सीख जाएंगे। आप बहुत कंपनी में जाएंगे तो आप चंद चीज़ें ही सीख पाएंगे। तो स्टार्टअप मेरे ख्याल में एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर और होनी चाहिए। लर्निंग अपॉर्चुनिटी आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है कि भाई मैं ऐसी जगह जाऊँ जहाँ मुझे सीखने को बहुत। आप लोग अभी, आपके पास अभी मौका है, आप लोग अभी यंग हैं, आप में से बहुत ज़्यादातर की शायद शादी भी नहीं होगी, कि साहब घर में बीवी बच्चे हैं या शौहर बच्चे हैं वगैरह वगैरह, तो आप लोगों को ज़्यादा टाइम है ऑफिस के लिए, अपने काम के देने के लिए, तो आप लोगों को सीखने की बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, जो कि स्टार्टअप्स में बहुत है इमेंस। मतलब आप यकीन नहीं करेंगे कि किस किस किस्म की चीज़ें आप स्टार्टअप में जाके सीख सकते हैं। तो कहाँ मुझे नौकरी करनी है, उसके लिए मेरे ख्याल में वो जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे इस एरिया में जाना है, फर्स्ट कीजिए आपने डिसाइड किया कि मुझे जाना है, फर्स्ट कीजिए आपने डिसाइड किया कि मुझे जाना है हेल्थ केयर। तो हेल्थ केयर में आपकी कोशिश करिए कि आप स्टार्टअप में जाइए, वहाँ आपको सीखने को बहुत मिलेगा, वहाँ नौकरी मिल जाने के चांसेस भी काफ़ी हैं। आप स्टार्टअप में जाइए क्योंकि वहाँ आपको अपॉर्चुनिटीज भी बहुत मिलेंगी, क्योंकि स्टार्टअप में आप सीखेंगे बहुत, तो आपको ग्लोबल और लोकल दोनों अपॉर्चुनिटीज आपके लिए शायद ज़्यादा रहेंगी। स्टार्टअप एक और पॉइंट है जो कि मेरे ख्याल में ध्यान में रखना चाहिए लोगों को, और ध्यान में रखना भी चाहिए और नहीं भी रखना चाहिए। आई थिंक जब आदमी कोई ढूंढता है सैलरी या अपना कैरियर के लिए कोई सेक्टर ढूंढता है कि मैं किस किस्म के सेक्टर में जाऊं, तो सैलरीज किस किस्म की है। तो मैं आपको बताऊं कि स्टार्टअप्स में दोनों तरह की ही सैलरीज हैं। स्टार्टअप्स में बहुत ज़्यादा सैलरीज भी हैं, और स्टार्टअप्स में बहुत कम सैलरीज भी हैं। तो स्टार्टअप्स में ज़्यादा सैलरीज इसलिए भी हैं क्योंकि नॉर्मली जैसे कि अगर आप आईटी इंडस्ट्री का एग्जांपल लीजिएगा, तो हर आदमी विप्रो या टीसीएस या आईबीएम या एचपी या माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन करना चाहेगा, और छोटी कंपनीज नहीं जो करना चाहेंगे लोग। तो अक्सर छोटी कंपनीज या स्टार्टअप्स जो हैं वो तनख्वाह अच्छी देते हैं, ताकि तनख्वाह के बेसिस पे लोग वहाँ ज्वाइन कर सकें। तो हम लोग सवाल भी हैं कुछ, तो वो बाद में ले लेंगे, कोई नोट कर लेगा सवाल, तो हम लोग सवाल कुछ बाद में ले लेंगे। जी हाँ, जी हाँ। जी जी जी, बेहतर। तो ये 5-6 चीजें हैं जो कि जिसके बेसिस पे आप चुनिएगा कि मुझे किस इंडस्ट्री में जाना है। तो वो ऐसी होनी चाहिए जो आपके पसंद की है, उसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत होनी चाहिए। वहाँ पे अगर आपको स्टार्टअप में जाने का मौका मिले तो बहुत अच्छा है। ऐसी इंडस्ट्री में ऐसे कैरियर बनाइए जिसमें आपके पास लोकल अपॉर्चुनिटीज भी हों और ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज भी हों। ऐसी किस्मत बनाइए जहाँ की ग्रोथ बहुत है। ग्रोथ से मेरा मतलब बहुत चीज़ों का है, इंक्लूडिंग सैलरीज ग्रोथ भी। सैलरीज बहुत ज़रूरी होती है, सैलरी ग्रोथ भी वहाँ बहुत अच्छी है। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जो आपको देखनी पड़ेंगी अपना काम शुरू करने से पहले, जब आप नौकरी ढूंढना शुरू करेंगे उससे पहले। अब मेरे ख्याल में दूसरी चीज़ जो है जो हम लोग अक्सर भूल जाते हैं, वो ये है कि असद कुरैशी साहब ने बहुत अच्छा बताया कि
50 कंपनीज आपने शॉर्टलिस्ट की, तो मेरे ख्याल में वो कौन सी कंपनी है? फर्ज कीजिए आपने डिसाइड किया कि आपको हेल्थ केयर में जाना है या आपको जाना है रिटेल में। तो रिटेल में आज की तारीख में, आज से 10 साल 15 साल पहले पॉसिबल नहीं था, क्योंकि इंटरनेट नहीं था। इंटरनेट ने तो पूरा डायनेमिक्स ही बदल दिए। आज से 10 साल 15 साल पहले इंटरनेट नहीं था, लेकिन आज की तारीख में अगर आप स्मार्टली काम करेंगे तो आप एक्चुअली वो 5-6 कंपनीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिसके पीछे आप हाथ धो के पड़ जाएं और ये कहें कि भाई मुझे तो यही कंपनीज ज्वाइन करनी है। तो फर्ज कीजिए आप जाना चाहते हैं हेल्थ केयर में, तो हेल्थ केयर में जाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत आसान है और अच्छा, आप हेल्थ केयर में भी जाना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि भाई मैं नॉर्थ इंडिया में ही रहना चाहता हूँ, तो थैंक्स टू इंटरनेट आज आप इंटरनेट पे गूगल का इस्तेमाल करके आप ये जान सकते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में टॉप हेल्थ केयर कंपनीज कौन सी हैं, नॉर्थ इंडिया में हेल्थ केयर कंपनीज अच्छी कौन सी हैं। उसके बाद आप और ज़्यादा जान सकते हैं उन हेल्थ केयर कंपनीज के बारे में, फिर अगेन गूगल का इस्तेमाल करके। तो सोशल मीडिया बहुत अच्छी जगह है, न्यूज़ बहुत अच्छी जगह है, और दूसरे तरह तरह के वो जो सब्जेक्ट पोर्टल्स होते हैं वो उनमें अगर आप जाइए, उनमें इन्वॉल्व हुई तो आप एक्चुअली नैरो डाउन कर सकते हैं वो 7-8 5-6 कंपनीज जिनको आपको टारगेट करना है। You don't have to run after 100 companies, just target 5-10 companies and go after them, और इंशाल्लाह उस कंपनी में आपको नौकरी मिल जाएगी। अब वो मैं बताता हूँ आगे कि किस तरीके से आपको वो करना है। तो आप ये टारगेट, तो अब कंपनीज के बारे में क्या क्या जानना है आपको जानना है कि इसका रेवेन्यू है, आपको जानना है ये कंपनी जो है वो किन किन, फर्स्ट कीजिए हेल्थ केयर है तो आपको हेल्थ केयर में आपको ये जानना है कि ये भाई प्रॉफिटेबल हेल्थ केयर कंपनी है या लॉस मेकिंग हेयर कंपनी है। वो भी शायद आपको इंटरनेट पे डायरेक्टली मिल जाएगा या बहुत सारी ऐसी चीज़ें इंफॉर्मेशन मिलेगी जिसके बेसिस पे आप समझ सकते हैं कि ये ठीक अच्छी कंपनी है। फिर आपको जानना है कि भाई 5-6 कंपनीज हेल्थ केयर में ऐसी कौन है जिनकी सैलरी बहुत अच्छी है, वो भी आपको पता चल जाएगा। आपको जानना है 5-6 ऐसी हेल्थ केयर कंपनीज जहाँ के वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, वो भी आपको इंटरनेट से पता चल जाएगा। इंटरनेट से और सोशल मीडिया से और लिंक्डइन से और 10 जगह से आपको पता चल जाएगा। आपको जानना है ये कंपनी प्रोफेशनली रन कंपनी है या फैमिली टाइप कंसर्न है, वो भी आपको पता चल जाएगा। तो आप नैरो डाउन कीजिए, आप जीरो इन कीजिए उन 8-10 कंपनीज को जो कि जहां आपको नौकरी मिल जाए तो आप यू विल बी हैप्पी। और मेरा मानना ये है कि यू कैन नैरो डाउन, यू कैन फाइंड आउट, यू कैन आइडेंटिफाई दोस 8-10-12 कंपनीज वेयर यू वुड लाइक टू गेट अ जॉब। ठीक है, एलुमनाई की भी बात की थी असद साहब ने, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आप में से वो लोग जो कि मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से हैं या इंजीनियरिंग कॉलेजेस से हैं, तो आप लोग प्लीज़ अपने एलुमनाई से कनेक्टेड रहिए। बहुत पॉसिबल है कि आप जिस कंपनी में जाना चाहते हैं उस कंपनी में आपके कोई एलुमनाई भी बैठे हुए हों, आपको पता ही नहीं। प्लीज़ आप उनसे कनेक्टेड रहिए, उनसे मालूम करते रहिए। तो आपकी पसंद की कंपनी में हो सकता है एलुमनाई हो, या ये हो सकता है कि आपका पसंद का जो एलुमनाई है वो आपको आपकी पसंद की कंपनी तक पहुंचा। तो एलुमनाई से कनेक्टेड रहिए, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद एक मेरे ख्याल में, तो आपने कंपनी, तो अब आप अंधेरे में हाथ पैर नहीं चला रहे हैं, आपने 8-10 कंपनीज आइडेंटिफाई कर ली और अब आप उन कंपनीज को परसू करेंगे। देखिए HR मैनेजर्स जो होते हैं, अगर ऐसी कंपनी है जो सॉट आफ्टर कंपनी है तो वहाँ महीने में 1-1 लाख रेज्यूमेज आते हैं, और
मैं किसी से बात कर रहा था, तो उन्होंने ये बताया कि साहब एक कंपनी के लिए, सॉफ्टवेयर कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, बात कर रहा था इस सिलसिले में कि वो पूरा रेज्यूमे मैनेजमेंट का एक बहुत लंबा चौड़ा प्लेटफॉर्म उन्होंने नया खरीदा है, और कैसे रेज्यूमे मैनेजमेंट होता है उस पर किसी और दिन डिस्कशन करेंगे हम लोग, टाइम शायद हमारे पास नहीं है। तो रेज्यूमेस तो बहुत आते हैं, और आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, या आपके मामू या चचा या बड़े भाई वहाँ पे बैठे हुए हैं तो शायद आपका रेज्यूमे खोल के देखा जाएगा, वरना आपका रेज्यूमे का कोई जवाब भी नहीं आएगा। एक अंधा कुआं है जिसमें रेज्यूमे आपने डाल दिया, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है तो आपको कोई कॉल आ गया, वरना तो पता ही नहीं चलेगा। तो मेरा अपना मानना ये है कि सिर्फ रेज्यूमे एक बहुत अच्छा रूट है, रेज्यूमे तो आप भेजिए ही। आप जब कंपनी, तो आपने जो ये 8-10 कंपनीज आइडेंटिफाई कर ली जब, तो उस कंपनीज के साथ आप एंगेज करना शुरू कीजिए। तो फर्ज कीजिए आपने आइडेंटिफाई किया है कि साहब मैं अपोलो हॉस्पिटल्स में इंटरेस्टेड हूँ, और मैं किसी और हॉस्पिटल में, 2-3 आपने हॉस्पिटल्स हेल्थ केयर मैंने जिक्र किया था, उनमें इंटरेस्टेड हूँ, मैं उनमें ज्वाइन करने, वहाँ मार्केटिंग टीम में ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हूँ, या वहाँ किसी और चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ, कस्टमर सर्विस में या जिसमें। तो अब आप उन 8-10 कंपनीज को नो दोस कंपनीज इनसाइड आउट, उस कंपनी के बारे में जितना पढ़ सकते हैं आप पढ़ लीजिए, उस कंपनी के बारे में जितना जान सकते हैं आप जान लीजिए, नंबर 1। नंबर 2, जब आप फेसबुक पे और लिंक्डइन पे और दूसरी जगहों पे जब आप घूम रहे हैं और वक्त गुजार रहे हैं, तो उन कंपनीज के जो लोग हैं उनके साथ एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कीजिए। आप जब उन कंपनीज के वेबसाइट पे जाइए, और जो एचआर मैनेजर है उसको आप रेज्यूमे तो भेजिए ही, लेकिन उसको डिफरेंटली एक उसके साथ एंगेज कीजिए। फॉर इंस्टेंस आप उससे ये कहिए कि देखिए साहब, मैं तो वहाँ छोटा सा एक शहर है अलीगढ़, वहाँ का रहने वाला हूँ, और मुझे उसको ज़्यादा कुछ नहीं मालूम, लेकिन ये कोविड का ज़माना है, और बहुत सारे हॉस्पिटल जो हैं अब अपनी कोविड सर्विसेज घर तक पहुँचा रहे हैं, क्योंकि लोग जो हैं वो हॉस्पिटल आने में डरते हैं। तो अगर आप कहिए तो, और आप चाहें तो आप अपने मुझे किसी मार्केट डेवलपमेंट, बिजनेस डेवलपमेंट का जो इंचार्ज है उसके साथ मुझे जोड़ दीजिए, और मैं अलीगढ़ में आपको 1 हफ्ते में सर्वे करके दूंगा कि अलीगढ़ जैसे शहर में अगर कोविड से रिलेटेड सर्विसेज फोर्टिस हॉस्पिटल या अपोलो हॉस्पिटल या कोई एक्सपाइज हॉस्पिटल जो है वो करना चाहे, तो अलीगढ़ जैसे शहर में उसको कितने कस्टमर्स मिल सकते हैं। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आर्बिट्ररी एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो आप ये ट्राई करिए। मैं एक एग्जाम्पल है, और ऐसे बहुत से तरीके हो सकते हैं ट्राई करने के। आप अगर वेबसाइट पे गए हैं और आपको मिल गया है वहाँ के मार्केटिंग का या वहाँ के बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर का, तो उस पर छोटी सी मेल लिखिए कि मैं अलीगढ़ का रहने वाला हूँ, आप कहिए तो मैं अलीगढ़ पे मैं एक सर्वे करके दे सकता हूँ। मैं कुछ चार्ज नहीं करूंगा, मैं फ्री करूंगा, मुझे बहुत सीखने को मिलेगा, और मेरे लिए तो ड्रीम कंपनी है अपोलो या फोर्टिस या जो भी है, और मैं ज्वाइन करना चाहूंगा वगैरह। देखिए आप 8-10 लोगों को लिखिए, हो सकता है उसमें से 1-2 लोग आपके लिए आपसे कहें कि अच्छा भाई ये पता करके दो, वो पता करके दो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि स्टार्ट एंगेजिंग। So number 1, identify those companies. Number 2, study those companies thoroughly, inside out. Know everything that you can know about those companies. Find out people who are working in companies, or find out people who have some association with those companies. Build relation with those people. देखिए इंटरनेट का, व्हाट्सएप का, ट्विटर का, लिंक्डइन का ज़माना है, तो आप अगर ऐसी बातें करेंगे जो कि मुझे यूज़फुल लगती हैं, तो मैं आपके साथ एंगेज करूँगा। तो मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ कि हमारी जो एक और कंपनी है जिसके लिए मैं थोड़ा सा कंसल्टिंग करता हूँ, तो वो एक CRM कंपनी है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो ये कंपनी जो है ये बेसिकली सेल्सफोर्स एक CRM प्लेटफॉर्म है, उसमें डील करती है कंपनी। तो CRM का जो है वो
बेसिकली सेल्स फोर्स ऑटोमेशन, बहुत ही सिंपल लफ्जों में कहूँ, सेल्स फोर्स ऑटोमेशन करती है ये कंपनी। तो ये कंपनी काफ़ी एक्टिवली ऐसे लोगों तक, ऐसे जॉब सीकर्स तक, ऐसे करियर सीकर्स तक रीच आउट करती है और उनसे छोटे छोटे काम करवाती है, सिर्फ ये समझने के लिए कि इस आदमी में कितना ड्राइव है, कितना इंटरेस्ट है, कितनी इंटेलिजेंस है, कितनी सिंसियरिटी है, कितना पैशन है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैं कहने का मतलब ये था कि इस किस्म के लोग और इस किस्म की कंपनीज हैं जो लोगों की तलाश में रहती हैं। हर तरफ ये सुनने को मिलता है कि साहब नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है। वो बात भी सही है, लेकिन ये बात भी सही है कि अच्छे लोगों की हर वक्त तलाश रहती है, और अच्छे लोगों की तलाश इस हद तक रहती है कि अगर मुझे पता चल जाएगा कि ये आदमी जो है, ये लड़का जो है या लड़की जो है, ये नौकरी की तलाश में है, सिंसियर है, अक्लमंद है, मेहनती है, वगैरह वगैरह, तो I will try and reach out to her and get her in। तो ये है हकीकत मेरे ख्याल से। तो इसलिए प्लीज़ एंगेज करिए उनके साथ, उन लोगों को पता करिए कि ये लोग कौन हैं, उनके साथ एंगेज कीजिए। तो एक पॉइंट ये है। एक और पॉइंट ये है कि जब आप, अब असद साहब ने भी मुझसे पहले कहा था कि लिंक्डइन और इन सब के बारे में, देखिए आज की तारीख में चाहे मार्केटिंग हो, चाहे कोई भी एरिया हो, उसमें मेरे ख्याल में सारे फार्मूले आजमा लिए गए हैं। अगर मैं बहुत ही सिंपल और क्रूड टर्म्स में कहूँ, सारे फार्मूले आजमा लिए गए हैं। अब जो लोग ढूंढ रहे हैं वो ये है कि भाई आप डिफरेंट क्या कर सकते हैं, आप नया क्या कर सकते हैं। व्हाट इज इट दैट यू कैन डू डिफरेंटली, व्हाट इज इट दैट डू न्यू, व्हाट इज इट दैट यू कैन डू फॉर इनोवेशन, व्हाट that you can do for cost cutting and so on and so forth। मतलब एग्जाम्पल। तो इन चीज़ों को आप तो जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, फर्ज कीजिए आपने हेल्थ केयर के कुछ इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, गूगल पे जाएंगे आपको तो हेल्थ केयर से रिलेटेड इंटरेस्ट ग्रुप्स मिल जाएंगे, आपको उसमें मिल जाएंगे, क्या नाम है, लिंक्डइन में मिल जाएंगे। तो उन इंटरेस्ट ग्रुप्स में जब आप घूमेंगे तब आपको पता चलेगा कि साहब हेल्थ केयर की जो फील्ड है उसमें मेजर चैलेंजेस क्या है, मेजर चैलेंजेस क्या है। तो हेल्थ केयर में मेजर चैलेंजेस है, फॉर इंस्टेंस कोविड के ज़माने में मेजर चैलेंज है कि भाई हाउ डू यू मोटिवेट योर एग्जिस्टिंग पेशेंट्स, योर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स टू स्टार्ट विजिटिंग द हॉस्पिटल अगेन, हाउ डू यू take your services to the patient's home, how do you use new technologies like video conferencing and WhatsApp and Zoom to reach out to your customers, so on and so forth। तो इसलिए अब जो है वो ज़माना है न्यू का। व्हाट इज न्यू, व्हाट इज डिफरेंट, व्हाट इज इनोवेटिव, क्या चीज़ ऐसी मैं करूं कि कॉम्पिटिटर्स कहें अरे वाह, कस्टमर्स कहें अरे वाह। तो जब आप इन चीज़ों को थोड़ा सा समझेंगे, और वो आप समझ जाएंगे, बहुत आसान है, आप समझ जाएंगे जब आप उसमें जाएंगे, क्या नाम है, इंटरेस्ट ग्रुप्स में जो मैं कह रहा हूँ, जो कि लिंक्डइन पे है और व्हाट्सएप पे होगा, वगैरह वगैरह। तो वहाँ आप जाएंगे तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा बहुत आसानी से कि भाई क्या क्या, किन किन चीज़ों पे हेल्थ केयर इंडस्ट्री आज की तारीख में किस चीज़ पर डिस्कशन कर रही है, उसके यहाँ अभी क्या पेन पॉइंट्स हैं, उसके यहाँ अभी क्या चैलेंजेस हैं। इन चीज़ों को समझिए। इन चीज़ों को समझने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये दो चीज़ें हैं, ये अगर आप समझेंगे तो आप जिसकी नज़र में आना चाह रहे हैं, ये जो जॉब दे रहा है, जो HR मैनेजर है या मार्केटिंग मैनेजर है या ये है, इस किस्म के लोग हैं, इनकी नज़र में आप आना चाह रहे हैं, तो आप इन चीज़ों पर अगर आपने डिस्कशन रखेंगे, डिस्कोर्स रखेंगे, तो इनकी नज़र में आप बहुत आसानी से आएंगे। और आप जो बात करिएगा और वो अराउंड इन चैलेंजेस होंगी, अराउंड इनके होंगी, तब वो ये समझेगा कि हाँ यार, ये सिर्फ एक ऑर्डिनरी जॉब सीकर ही नहीं है, ये वो जॉब सीकर है जिसने बहुत कुछ पढ़ लिया है, बहुत कुछ समझ लिया है, ये मेरी इंडस्ट्री को अच्छी तरीके से जानता है
और ये जिस दिन मैं इसको नौकरी दूंगा या जिस दिन मैं इसको अपने साथ एसोसिएट करूंगा, उसके 2-4 दिन के बाद ही ये काम शुरू कर देगा, he will be productive. तो you have to learn the industry, you have to learn the challenges of the industry, and when you are interacting, when you have identified these people and when you are interacting with them, demonstrate to them your learnings, demonstrate to them, उनको आपकी बातों से, आपके कमेंट से, आपके फीडबैक से, आपके डिस्कशन से उनको ये लगे कि यार ये आदमी इंडस्ट्री जानता है, ये आदमी काम समझता है। तो क्या ये सब चीज़ें जो मैंने बताई ये सब हवाई बातें हैं, ये हो नहीं सकती हैं? जी नहीं, ये सब हो सकती हैं, क्योंकि गूगल और इंटरनेट और ट्विटर और लिंक्डइन के ज़माने में ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, बहुत आसानी से, बहुत दिक्कत नहीं है। तो इसलिए मेरे ख्याल से आज की तारीख में आप जो नौकरी, आपकी पसंद की नौकरी, आप जो आपको चीज़ पसंद है उसमें आपको नौकरी या कैरियर या रोज़गार मिल सकता है। आपको जो अपनी कंपनी पसंद है उसमें आपको नौकरी या रोज़गार या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बस मेरा यही कहना है। जो मैंने तरीक़े बताए हैं वो थोड़े से तरीक़े हैं, मेरे ख्याल में आप लोगों को शायद उससे भी और ज़्यादा अच्छे तरीक़े, ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीक़े मालूम होंगे, लेकिन ये मुमकिन है और इस तरीके से करिए, इंशाल्लाह अच्छी आपके पसंद की नौकरी, ऐसी नौकरी जिसमें ग्रोथ है, ऐसी नौकरी जिसमें अच्छी है, ऐसी नौकरी जिसमें कि लर्निंग बहुत है, ऐसी नौकरी जिसमें ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ हैं मिलना, ऐसी नौकरी जो आपकी पसंद की नौकरी। और जैसा असद साहब ने बताया था कि वो नौकरी करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप नौकरी कर रहे हैं। ऐसी, मेरे ख्याल में ऐसी नौकरी ढूंढना और ऐसी नौकरी का मिल जाना मुश्किल नहीं। शुक्रिया बहुत बहुत। कोई सवाल अगर हो तो मैं जवाब देने की कोशिश कर सकता हूँ। सर एक सवाल है कि व्हाट इज द स्कोप फॉर ए स्टार्टअप इन फाइनेंस सेक्टर? देखिए, फाइनेंस इज अ वेरी वेरी टाइटली कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड मार्केट। तो सवाल क्या था कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ अ स्टार्टअप इन फाइनेंस? या इन फाइनेंस सेक्टर। Okay, finance sector. Now, finance is a huge sector. So there will be some sectors in finance where startups will be very difficult, and there will be some sectors in finance where startups will be very easy and they will be adopted very easily. So, for instance, ये जो क्या नाम है, मोबाइल मनी, तो आज से 10 साल 12 साल पहले मोबाइल मनी जो थी वो कोई जानता ही नहीं था कि आप कैसे, पेटीएम क्या चीज़ होती है और दूसरे जो मोबाइल मनी के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो क्या है। लेकिन कुछ लोग आए और उन्होंने इसमें काम शुरू किया और अब वो हिंदुस्तान की बड़ी कंपनी में से हो गए। तो अनलेस के मुझे समझ में आए, देखिए मेरे फाइनेंस, मेरा एरिया बहुत नहीं है। मुझे ये मालूम है, मुझे 2 चीज़ें मालूम है फाइनेंस के बारे में। वो ये कि एक तो ये है कि फाइनेंस बहुत कंट्रोल्ड एरिया है, बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड कंट्रोल्ड एरिया है। तो फाइनेंस से मेरा मतलब, आप जब कह रहे हैं तो मेरा मतलब शायद मतलब है बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं इसमें। बहुत सारी चीज़ें हैं कर सकते हैं, बहुत सारी एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं जिसमें आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में फाइनेंस में स्टार्टअप की बहुत गुंजाइश है। डिपेंड करता है कि क्या आपने ऐसा एरिया चुना है जिसमें पेटीएम जैसे दिग्गज कूद चुके हैं, या आपका एरिया जो है वो बहुत न्यू और नॉवेल्टी एरिया है। तो जैसे मैं बताऊं आपको, बल्कि कुछ लोग इस पे काम भी कर रहे हैं और मेरी उनसे बात भी हुई थी। इसको भी आप इसी में रखिए, ये जो ज़कात का वो है। तो आज मैं गुड़गांव में रहता हूँ और मेरे पास महीने में 10-12 किस्म के लोग आते हैं और ज़्यादातर उसमें से छोटे छोटे मदरसों से लोग होते हैं और वो कहते हैं साहब मुझे छत डलवानी है और मुझे ज़कात का पैसा दे दीजिए और मुझे ट्यूबवेल लगवाना है और ये करना है और वो करना है। लेकिन ज़कात मैनेजमेंट के ऊपर हिंदुस्तान में 20 करोड़ मुस्लिम्स हैं। क्या ज़कात मैनेजमेंट के ऊपर कोई हमारे पास सॉफ्टवेयर है?
क्या ज़कात मैनेजमेंट के ऊपर कोई ऐसा नेटवर्क है जिसमें कि मुझे पता चल सके कि साहब ज़कात की पैसे की अभी वहाँ भेजा जा सकता है, ज़कात का पैसा साउथ इंडिया में कोई बहुत सख्त ज़रूरत है, वहाँ ज़कात का पैसा मैं भेज दूँ। ज़कात के पैसे से कैसे फंड और कॉर्पस बनाए जा सकते हैं, तो हो सकता है हो, मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन मैंने सुना नहीं है कोई कि ज़कात से रिलेटेड कोई बहुत अच्छा आईटी सॉल्यूशन या बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है जो ज़कात मैनेजमेंट और ज़कात यूटिलाइजेशन पे जो काम कर रही है। लेकिन मेरा मैं क्योंकि इस सब्जेक्ट का मेरा सब्जेक्ट नहीं है ये फाइनेंस, मैं बस यही कह सकता हूँ आपसे कि अगर आपका एरिया जो है स्टार्टअप के लिए वो ऐसा है जिसमें कि बहुत लोग नहीं कूद चुके हैं, तो मेरे ख्याल में बहुत स्कोप है इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया इब्राहिम सर। कोई और क्वेश्चन किसी और का? तो और क्वेश्चंस नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया इब्राहिम साहब और असद कुरैशी साहब। इट वाज अ वेरी good session, and I hope the students who have joined here or those who are job seekers, they will learn a lot from this and they will use this knowledge to get a good job for themselves. They may also share our resumes to the number which is there already in the promos, and we can also look forward to get some jobs for them and whatever opportunities are available. किसी ने एक सवाल पूछा है कि एडवर्टाइजिंग और जर्नलिज्म में क्या स्कोप है। तो भाई एडवर्टाइजिंग और जर्नलिज्म में बहुत स्कोप है, बहुत। और एडवर्टाइजिंग और जर्नलिज्म ये भी सब बदल गए। देखिए टेक्नोलॉजी ने, आईटी ने, इंटरनेट ने इन सब चीज़ों को बदल दिया है बहुत। बस सिर्फ मतलब क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास, तो सिर्फ यही कहूँगा मैं कि इसमें बहुत स्कोप है। आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कितना स्कोप है इसमें, पब्लिशिंग में, एडवर्टाइजिंग में। और फिर मेरे ख्याल में ऑफलाइन हम लोग कभी बात कर सकते हैं। खालिद साहब से आप मेरा नंबर ले लीजिएगा। असद कुरैशी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि सब लोग अपना वीडियोस ऑन कर लें, जिससे कि हम एक इस सेशन का फोटोग्राफ भी ले लें। एक क्वेश्चन था, आई डोंट नो, समवन हैज पोस्ट, व्हाट इज द स्कोप ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स, डेटा मैनेजमेंट एंड फार्माकोविजिलेंस? So there is a lot of scope in clinical trials. Clinical trials जो है इंडिया के अंदर काफ़ी expand हुआ. It is a very global phenomenon. और जो चीज़ें चल रही है उसके लिए तो ये बहुत important है. Clinical trials and pharmacovigilance is definitely a yes. And there were a lot of openings. There is a lot of openings, and there will be a lot of openings in this segment. And if you are rightly qualified to take this task, then definitely you know there is a scope. There is a scope of a clinical trial. India is one of the hubs for clinical trials. And as far as the data management is concerned, yes, definitely. Data is now more lucrative than oil industry. So as of today, the name of the game is data management. So whoever wants to foray into the business of data management, yes, upgrade your skill set. People are talking about Python, but believe me, there is one more which is in pipeline, which is a very open access code, that is Julia, which is coming in and would be taking over Python very soon. So please go into it, dig deeper. There is huge scope in clinical trial, data management, and pharmacovigilance. And if you need any more information on further that, I would be definitely more than happy to assist or guide you. You can take my details from Injila Khan. She has done a fabulous task this session. Thank you very much. Thank you speakers and thank you all the participants. एक चीज मैं लास्ट में ये कहूंगा कि डेटा पे बात आई थी। देखिए मुकेश अंबानी को तो मेरे ख्याल में सभी लोग जानते होंगे, और वो तो उनसे सीखना चाहिए सब कुछ। He says that data is the new oil. डेटा जिसके पास है उसके पास सब कुछ है। और डेटा से रिलेटेड बहुत सारे एरियाज हैं जो निकल के आ रहे हैं।
तो मैं आपको पब्लिशिंग पे किसी ने मुझसे कहा, तो पब्लिशिंग पे तो इस किस्म के भी काम होते हैं। मतलब पब्लिशिंग पे कोई ज़रूरी नहीं है कि आप नई कुछ निकाल के लाइए, आप ये भी काम कर सकते हैं कि आपने पुराने मैगजीन्स के या पुराने पब्लिशिंग जर्नल्स जो हैं उनको आपने एक जगह इकट्ठा किया, उसमें से सारा डेटा आपने निकाला पुराना निकालने देने के लिए, और वो आपने इकट्ठा करके लोगों को देना शुरू कर दिया। तो डेटा तो बहुत, मतलब डेटा इज द न्यू ऑयल। मतलब वो तो डेटा से रिलेटेड तो आप बहुत चीजें कर सकते हैं, और डेटा साइंस एक पूरा सब्जेक्ट हो गया है डेटा साइंस। तो वो मेरे ख्याल में किसी और दिन करेंगे, लेकिन ये कि जी हाँ, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सलाम।